Okay, let us start our today's class. This is the first class. So, in today's class, we will discuss on first unit. The content of the first unit, object-oriented programming. Introduction about the object-oriented programming. What are the applications and characteristics of object-oriented programming? Now, then we will discuss about the difference between the object-oriented and procedure-oriented programming. Based on these concepts, there are two languages. One is the C and C++. C is support to the procedure-oriented programming, and the C++ is support to the object-oriented. So we will see the comparison or difference between the C and C++. After completing this topic, we will come on the practical demonstration, like how we can use or how we can type a program on C++ compiler or editor. So we will discuss about the C out, C in data type. That is my basic data variables, functions, or methods. So how we can define the variables, attribute, method in C++, and what are the syntax of the C++ language. Then we will discuss about the whole architecture of a program, which is used the control statement, loops, array, strings, and fundamental. Then we will see about the function, return value from function, reference argument, overload function, inline function, default argument, and returning by the reference. So these are the content of the first unit we will discuss. So now let us start. The screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, let us start. Introduction to object-oriented programming methodology. Outline of the lecture is the procedure and structure-oriented programming, object and class, data encapsulation, data abstraction, methods and variable, inheritance, message passings, and polymorphism. Basically, these are the concepts like object and class, data encapsulation, data abstraction, methods and variable, inheritance, message passing, and polymorphism. These are what? These are the object-oriented concepts. We will discuss one by one. Now, come to the procedure-oriented programming language. When you run program in C language, अगर आप लोगों ने C language में प्रोग्राम रन किए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उनका रीडिंग, कैलकुलेटिंग और प्रिंटिंग पूरा एक सीक्वेंस में होता है. ठीक है, सीक्वेंस मतलब वन बाय वन. पहले आपको डेटा वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करने पड़ेंगे. ठीक है, फिर उसका इनपुट वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी. ठीक है, फिर उसकी पूरी एक प्रोसीजर लिखनी पड़ेगी जहां पर कि हमारा पूरा कैलकुलेशंस होगा. एट लास्ट में हम जाकर फिर प्रिंटिंग करवाएंगे. तो दैट इज व्हाट दिस इज द प्रोसीजर ओरिएंटेड. मतलब आप कोई सा भी टास्क करना चाह रहे हैं, आपने एक उसकी प्रोसीजर लिखी और वो प्रोसीजर सीक्वेंस में लिखाएगी. तो पहला स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ. इस तरीके से आप अपना पूरा एक प्रोग्राम राइट करेंगे. In the procedure-oriented approach, the problem is viewed as a sequence of things to be done, such as the reading, calculating, and printing. तो जब हम एक सीक्वेंस में पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, जब हम एक पूरा प्रोग्राम सीक्वेंस में लिखते हैं तो उसको हम जनरली बोलते हैं प्रोसीजर-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट सम practically software is there that is called the COBOL, Fortran and C language. आप लोगों ने तो COBOL और Fortran तो देखी नहीं होंगी लैंग्वेज.
बट फोर्ट्रॉन लैंग्वेज जो होती है वो आज भी हमारी सबसे एक्यूरेट लैंग्वेज को बोला जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। कि अगर हम बात करें कहाँ पर, जो रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, वो आज भी फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का यूज करती हैं जब उनको कोई रिसर्च ओरिएंटेड कैलकुलेशंस करना होता है। ऑल द ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड Fortran language for the calculations of mathematically research oriented concept because it generates the accurate result. And COBOL and C is also based on the procedure oriented language where we write the program in a sequence. So to avoid the sequence, another concept come or used by these language like a function. So basically these languages focus on the functions. We create a number of functions and these functions are communicated with each other to access the data of the function. मतलब क्या है कि अब जब हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो पता पड़ा एक हमारा जो प्रोग्राम है ना वो नंबर ऑफ लाइंस का लिखा जा रहा है। अब उसको अंडरस्टैंड करने में हमें प्रॉब्लम्स आती है कि अगर मेरे को बोला जाए कि आप 10 लाइन को अंडरस्टैंड करो और आपको बोला जाए कि आप 50 लाइंस को अंडरस्टैंड करो, तो आप खुद बोलोगे कि सर 10 लाइन को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है रेदर देन के 50 लाइंस को मैं अंडरस्टैंड करूं। तो बस यही है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड में अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखना है तो हम एक सीक्वेंस में लिखना पड़ता था, जिस वजह से जो प्रोग्रामिंग की लेंथ है वो भी ज्यादा होती थी, उसमें एरर ढूंढने में भी परेशानी होती है। अगर कहीं कोई हमारा लॉजिक गड़बड़ हो गया है तो नाउ रीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम वन बाय वन एंड फाइंड आउट द एरर और कंपाइलेशन एरर जो भी आपका आ रहा है उसको ढूंढें आप। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड के साथ प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन लैंग्वेज ने क्या निकाला कि एक छोटे छोटे फंक्शन बनाने लगे, छोटे छोटे फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल के अगर मैं आपको बात करूं प्रैक्टिकली कि ये फंक्शन क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या है, ठीक है ना, तो इसको किस तरीके से आप मैं आपको समझाऊं। आप लोगों ने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, सब लोग किचन में जाते होंगे, ठीक है ना, किचन में सभी लोग गए हैं, कोई ऐसा जो किचन में नहीं जाता हो अपना? सर जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, है ना। अब आप देखिए ये प्रोसीजर ओरिएंटेड को फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया। आप लोगों ने सब में घर में जो अपनी एक बेसिक होती है जो मसालदानी जैसे बोलते हैं, जहाँ सारे मसाले रखे होते हैं, है ना, ठीक है, देखा होगा आपने। तो उस मसालदानी में देखना छोटे छोटे बॉक्स होते हैं लेकिन ओपन होते हैं, ठीक है, ओपन होते हैं, वो सारे छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, वो सारे ओपन होते हैं और ऊपर से वही कवर करके रख देते हैं, पूरा एक कवर होता है उन सबका, ठीक है। वो बेसिकली क्या है, वो फंक्शन है, छोटे छोटे से जो बॉक्स बने हैं ना वो फंक्शन है और उन फंक्शन में वो डेटा रखा हुआ है। लेकिन डेटा इज विजिबल टू ऑल, डेटा इज विजिबल टू ऑल मतलब उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर 5 बॉक्स रखे हैं तो उन जो पांचों बॉक्स में जो डेटा है वो विजिबल टू ऑल है, विजिबल टू ऑल, सारे लोग उसको देख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज द फंक्शन। कि मैंने पूरे मसालों को एक साथ रखेंगे तो हो सकता है कि ये गड़बड़ हो जाए, पूरे मसाले मिक्स हो जाएं और फिर हमें उनको सेग्रीगेट करने में प्रॉब्लम हो। तो हमने एक छोटे छोटे से बॉक्स बनाए लेकिन उन बॉक्सों को भी एक ही जगह रखा, दैट इज द विजिबल टू ऑल। तो मैंने छोटे छोटे फंक्शन बनाए। प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही होता है कि हम क्या करते हैं कि अगर मेरा प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट या लॉजिक बहुत बड़ा जा रहा है, सपोज करिए 50 लाइन का जा रहा है, तो हम छोटे छोटे से 10 लाइंस के हमने फंक्शन बना लिए, 10 लाइंस के अलग अलग फंक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनपुट देने का एक फंक्शन बना लिया, आउटपुट का एक फंक्शन बना लिया, कैलकुलेशन का एक फंक्शन बना लिया। और फिर ये फंक्शन को अंडरस्टैंड करना आसान है कि भाई अगर कोई कंपाइलेशन एरर आ रहा है या कोई प्रोग्राम में एरर आ रहा है तो किस लेवल पे एरर आ रहा है, ये आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाता है कि इनपुट एरर है, आउटपुट एरर है या कैलकुलेशन। तो हम पर्टिकुलर उसी फंक्शन पर फोकस करें रेदर देन के पूरा प्रोग्राम हम एक साथ रीड करें। तो ये एक इश्यू जो हुआ, प्रोसीजर को थोड़ा सा रिलैक्स किया फंक्शंस ओरिएंटेड है, लेकिन अभी भी फंक्शन इज विजिबल टू ऑल और एनीवन कैन एक्सेस द फंक्शन डेटा in the procedure oriented language। तो जो